myself Shunya. We are here on another Thursday with some crazy guests on our panel. Director Saab, Mr. Gulati ji, and then we have someone special. I can't pronounce the name. I can't say it out because Twitch it'll ban me most probably. We have Mr. Kamal Shilpi. Okay, Mr. Shilpi. Hi. How are you? हेलो हेलो दोस्तों। हेलो छप्पी नल्ले निठल्ले बेरोजगार लोगों। स्वागत है आपका। आज हम फिर से मिल बैठे हैं तीन लोग और करने वाले हैं कुछ सीरियस डिस्कशंस लाइफ के बारे में या प्रेजेंट सिनेरियो या कुछ भी हो सकता है। तो शून्य जी, पेश किया जाए आज का टॉपिक। पेश करते। और बताइए आपका दिन कैसा था आज का? दिन से ये पता चला कि आज गुलाटी जी गए थे पठान देखने। तो वहां पे निहारी और कोरमा पता नहीं क्या क्या खा के आए हैं वहां से। मार के तो निहारी मार के आए थे वहां से। शिकार सुनने में पे थोड़ा अजीब लग रहा है कि पठान देखने गए थे कि शिकार पे गए थे। Move on to today's topic. That's enough. इसी और निहारी नल्ले निहारी से सीधे आते हैं डिलेमास में। तो आज का टॉपिक है हमारे मॉरल डिलेमा क्वेश्चंस और सिनेरियोज। मैं बोलना चाहता हूँ डिलेमा जो हमारे लाइफ में आती है। डिलेमास होता पहले क्या है तो बेसिकली कि हाँ ये हमारे बताइए कि डिलेमा, क्योंकि मेरे को लाइक एक्चुअल I know it's been used in context in many TVs and movies and talk shows, but what is actually a dilemma? एग्जैक्टली तो डिलेमा ऐसी एक चीज है कि इमेजिन कीजिए आपके पास ना दो रास्ते हैं। यू आर इन अ सिचुएशन Hmm. लाइफ में जहां आपके पास दो रास्ते हैं, बट दोनों रास्तों पे ना मॉरली आपके लिए मॉरली उस रास्ते पे जाना इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। मतलब आप अगर इमेजिन यू हैव अ वे टू गो ऑन द लेफ्ट साइड and a way to go on the right side. Okay. But if you go on the right side, the left side person may feel bad. And if you go on the left side, the right side person will feel bad. तो ये ऐसा सिचुएशन है लाइफ में जहां आप कुछ भी कर लो, वो दोनों सिचुएशन में निकलने के लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ तो लॉस होगा ही, किसी भी चीज पे हो सकता है। तो दैट इज लाइक अ मॉरल डिलेमा। So like यू आर टेंड टू फील बैड yeah. अबाउट इट। So it's या तो गर्लफ्रेंड को खुश रख लो या बीवी को, किसी एक को तो बुरा मानना it पड़ेगा। doesn't matter, हाँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी है, बीवी भी तुम्हारी है, राइट? तो और बुरा दोनों में से एक को ही लगेगा। एक को ही लगेगा, either it's a खाई or it's a कुआं। एग्जैक्टली। Yep. Okay. Okay. I'll get your तो point ऐसे then. ही लाइफ के सिचुएशंस के बारे में जो हमें एक ब्लॉग है, दिस इज अ ब्लॉग on 28 top moral dilemma questions plus scenarios and examples by Susan Box Mann। तो द सूजन बॉक्स मान ने ये 28 dilemmas बोला था, जिसके ऊपर हम थोड़े से एग्जांपल्स अपने बीच में बात करने वाले हैं। यस, So, ये there's सब dilemma and there's something called moral dilemma, right? So, यस moral dilemma is, I think, what you were talking about कि गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी है, बीवी भी तुम्हारी है, वहाँ आपकी आती morality. Dilemma can be like with any situation. And यस then यस एग्जैक्टली। when you it comes to your values, ki like how you have been, what your behavior is or what you are as a person, right? And it comes to a question कि हाँ ये तुम्हारे हिसाब से कैसे wrong or right है. And I think then it becomes a moral dilemma. Like it's very subjective. What could be right for me could be wrong for you, right? यस एक एग्जांपल के साथ चलते हैं।
हाँ, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं थोड़ा सा। All right. तो We're gonna go through an article today, and what the article is that we will look at some example of moral dilemma questions to help us define just what a moral dilemma is. So basically, we are talking about moral dilemmas today, not just dilemmas. Okay, Hmm. and we're gonna look some scenarios. We're gonna end those scenarios with some ethical questions which might make people uncomfortable. I think people are already uncomfortable because they are not able to speak right now. But let's go with the unfaithful friend. Okay, so you go out with your husband for dinner at a new restaurant you have not frequented before. Okay, it is in part of the town you rarely visit. You are shocked to see your friend's spouse having dinner with a very young, attractive person. From the way they are behaving, it is obvious they are more than friends. That's being judgy. That's being judgmental. Okay. The couple finish their meal and leave without seeing you. They behave very affectionately on the way out the door. Okay. Do you? Here comes a $1 million question. Tell your friend, knowing you probably will not be believed and that it may ruin your friendship. Okay. And or say nothing about seeing the couple as it's none of your business. They may even have an open relationship. Yeah, that's true. That Hmm. could be the case. You don't know, right? So I have a I have a situation or a scenario, right, which connects to this thing very perfectly. Okay. let's go one by one. So I think Shunya, you should like give your opinion first. What what will you do? हाँ तो आई एम टेलिंग ना. सो क्या है कि आई हैव अ फ्रेंड. ठीक है. He's a old school friend. बहुत पुराना है. Like I know him for 8 9 years, and he was going through a bad marriage. He was married to a woman for like around 10 more than 10 years, like 12 or 14 years. Okay. And by the time it came to the last phase, okay, what happened is I used to live in Gurgaon that time, and we were having like gigs, and we were going out every other weekend. मैं भी जाता था, वो भी जाता था, and then you know we used to go to these clubs and all, and enjoy dancing and all together, everything. So after a certain while, uh, he started seeing this chick, this woman, other woman. He was still married. Okay, I didn't know the details कि उनकी married life में क्या चल रहा है. But he was like they were going out, and they were like staying on vacations, going out with going for night outs and all. मेरे घर आ रहे, मेरे घर stay कर रहे दोनों as a couple. So they were very jolly up and very मतलब open about it. But starting में मेरे को लगा, I think that this is wrong. This guy is cheating. Okay, I should do something because ऑब्वियसली यार मैं उसको 8 साल से जानता हूँ, तो उसकी वाइफ से इंटरेक्ट हुआ है, मैं जानता हूँ उसको, बात करता हूँ, आई नो हर, like she's a very good person and all. And then, but I didn't do anything about it. I didn't say anything to her. I never discussed it with him as well कि भाई तू ये क्या कर रहा है, this is wrong, or whatever you're doing is, this is ethically, this is wrong, right? You should not cheat. Because कल को तुम्हारे ऊपर कोई चीट कर रहा है, ऐसे तुम्हें नहीं पता होगा, तो like it's a very fucked up thing. But the thing is, they were, after a while it became clear, उसका divorce हुआ. Okay, and they got separated. और जब डिवोर्स हुआ तब उसने मेरे से बात करी, तब उसने बताया कि दिस थिंग वाज हैपनिंग, लाइक
क्योंकि अगर तुम 8-10 साल के लिए शादीशुदा हो, राइट, तो अगर वो शादी टूट रही है तो उसका रीज़न, टू बिकम लाइक कि हाँ अब वी शुड गेट डिवोर्स, उसके लिए लाइक टाइम लगता है लड़ते पर। तू 2 साल से 3 साल से लड़ रहा था, लाइक ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एंड ही वॉज, वो दोनों के साथ नहीं बन रही थी। दैट्स वाई ही स्टार्टेड dating other person, and started doing this thing. So I was in this situation, and I did like the last one. I said nothing about it. It was none of my business. I stayed out of it, and eventually it made sense. लड़की का चक्कर बाबू भैया, बढ़ने का नहीं इसमें। Exactly. गुलाटी जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में नहीं से यार कुछ। देख, सीरियसली अगर ये सिचुएशन है तो बेटर है कि ना हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता सामने वाला बंदा तुम्हें किस तरीके से यूज करेगा। फर्स्ट थिंग, या तो वो वहां पे स्क्रीन क्रिएट करेगा, ठीक है, तुमने अगर उसने तुमको देख लिया, ठीक है, और उसकी इन कभी जो भी उसका पार्टनर है उसको पता लगता, तो सबसे पहले वो तुमसे क्वेश्चन करेगा, ना जानते हुए कि तुम्हारी कितनी पुरानी दोस्ती है, क्या जानते हो। क्योंकि जब उसकी फटेगी तो उसको जो सामने वाला बंदा दिखेगा वो उसको फंसाएगा, सीधी सी बात है। प्लस अगर वो लोग डिनर कर रहे हैं आपस में, नाइस नाइस। My bad. Sorry. Please go हाँ, ahead. तो जैसे सुनने का भी स्टोरी था, तो ऐसे हर किसी के उसमें हुआ होगा, कॉलेज लाइफ में कॉमन है, मतलब ये सब। हाँ, पर अगर मैरिड है तो आई थिंक अगर तुम्हारा फ्रेंडशिप डिपेंड करती है, कि अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो तुम एक बार ही बोलोगे उसको कि देख ऐसा ऐसा है, मतलब ये तेरी कॉल है, तू जो भी कर रहा है, मैं तेरे को ऐसे कोई फ्री की एडवाइस नहीं दे रहा या कुछ नहीं बोल रहा, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इंटरनली मैटर क्या है बाहर रहा। I was out and I was like, कि हाँ ठीक है देखते हैं। हम्म। If he comes to me and want to talk about it कि this is the situation, तू बता कि क्या हो रहा है, कैसे करूँ and all it, then I हम्म। could have given my input. Otherwise, अननेसेसरी कुछ ना कुछ अनफोल्ड होगा या फोल्ड होगा। ठीक है, फोल्ड तो मिर्जापुर का हो लेता डायलॉग है वो ना, ऑलरेडी। मिर्जापुर का डायलॉग है, मुन्ना ही मुंह मुन्ना ही साफ कर, तो करो भाई। बिल्कुल। तुम्हारा क्या कहना? मेरा ये कहना है कि लाइक, मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है इंसान से इंसान पे, क्योंकि अगर एक इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो चुका है, वो सीधा जाके हम्म। बोल देगा, और उसके साथ जिसके साथ नहीं हुआ है तो वो नहीं बोलेगा। मतलब मे बी उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका है पहले, लाइक somebody cheated on him, his ex या somebody, आई थिंक तो ही विल इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गो एंड टेल हिम। अगर नहीं हुआ है उसके साथ ऐसा कुछ, तो वो नहीं बोलेगा, वो पीछे ही रहेगा उसके, नहीं बोल। नहीं, हर हर तरीके वही है, इंसान के इंसान पर डिपेंड करता है, हर तरीके के लोग हैं। अगर हाँ किसी का उस टाइम पे ऐसा कटा होगा तो वो वेट करेगा कि तेरा भी कटेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ये हाँ ठीक है, बदतमीजी हो गई ना, ये तो निहायती ठीक है, बदतमीजी है। मेरा कटा है बचाने तो तेरा भी बचाने वाला, कटेगा। बच हाँ, बचाने वाले कोई नहीं है, कि तू कर कर देख, बाद में मजा आएगा तेरे को। हाँ, ऐसे भी लोग हाँ, हैं, होता तो है वो बिकॉज बंदे कर्मा पे इज अ बंदा बिच। डिपेंड करता कर्मा इज अ बिच। ओके। नाइस नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट dilemma. I think Shunya ji, Shall I दूसरा read it? dilemma फरमाएं। ठीक है। You and your family love the beach and decide to spend a weekend at an isolated beach cabin. Your teenage daughter often gets bored on your getaways, so you make plans to take your niece along. Okay. As soon as you arrive, a storm is looming on the horizon and the water looks rough. You tell the girls they can get ready to swim, but to come back and help unload the car. Okay. They are so excited, they do not pay attention to the last part of what you say and run down to the beach to swim.
You do not realize they have done so until you hear your daughter scream. Realize they are both caught in a strong current and might be swept out to sea. Oh my god. You're a good swimmer and you know you can save one of them. You have a difficult choice to make. Do you? Okay, this is interesting. Uh, do you A, save your niece first as she's a poor swimmer and will not be able to last as long as your daughter, okay? Or save your daughter first because although she's a strong swimmer and may be able to last long enough for you to come back after saving your niece, you cannot stand the idea of losing. I think none of us are is a parent right now, so we won't be exactly connecting to this over a child, like having a child. But I believe once you are a parent, anything in this world, your child comes first. आपका बेटा बेटी दुनिया में सबसे पहले ही आएगा आपके लिए, कुछ भी हो जाए। तो आप जितना भी वो लगा लो कि मैं इसको बचाऊंगा, वो अपने आप ये हो जाएगी, वो प्रो स्विमर है, ये अच्छी है, वो नो, नोबडी गिव्स अ फक। शी इज माय डॉटर, आई विल गो एंड सेव हर। वही आई थिंक मसल मेमोरी भी यही बोलती है, दिस इज माय सिबलिंग, दिस इज माय ब्लड, इट कम्स फर्स्ट। सो But there comes the question now. So your daughter might have chance. She might survive because आई she's a गेट इट, swimmer, right? But your आई गॉट niece इट, can't. बट मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक बैक ऑफ द माइंड ये मुझे पता भी हो, बट उस समय when I will be facing this dilemma, my brain will like make it a thing कि मेरा मेरी डॉटर है, मेरी बेटी है, तो आई विल गो आफ्टर माई बेटी ओनली। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि none of us is a parent right now, तो हम Uh, ये चीज को that I जितना can भी understand. हाइपोथेटिकली हम्म, सोच लेना Exactly. कर ले, वो हम अब वो अपने हिसाब से बोलेंगे अभी कि नहीं ये सही है। बट वंस यू आर अ फकिंग पेरेंट, तुम आपका वो मेंटेलिटी हमेशा यही होगा हम्म, कि बेटी है। Like there's a point. कि हाँ, that's my child. That's my responsibility, and oh, that's the first connection I have. तो इसमें मतलब नीच जा रही तो जान दे कोई नहीं. Oh fuck bro. मेरा बच्चा नहीं है, who cares? बेटी बचाओ. Oh no, this is a fucked up situations, bro. Like this could happen with any person, nah? Like maybe it can happen between two of your cousins, right? Maybe it can दैट इट happen like दैट इट या तब बहुत डिफरेंट सिचुएशन होता, तब यू हैव टू थिंक अबाउट इट। right. You आई have थिंक योर ब्रेन विल mhm. योर ब्रेन विल हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट उस समय, मे बी। But I think last में लिखा you are a good swimmer and you know you can save one of them. भाई अगर गुड स्विमर है तो दोनों को बचा लेगा यार. ठीक है, ट्राई तो एटलीस्ट करेगा. ठीक है, और नीचे ऑप्शंस में अगर वो बता रहा है कि उसकी बेटी गुड स्विमर है, तो जब Hmm. तक वो वहां पहुंचेगा तो उस उसको इतना तो पता लग उस जाएगा कि कौन स्विमर है कौन नहीं है भाई. Ah, so there's उसको तो those. पहले गुड गुड स्विमर से पहले उसको गुड पेरेंट बनना चाहिए था, बेवकूफ। साला बच्चियां हाँ. पानी में बह गई, तुम्हें लौड़ा हाँ, लौड़ा पता भी नहीं है। जब बच्चियां उस तरफ भाग रही है तो वहीं रोक देना. हाँ वही, यू आर अ बैड पेरेंट। यू आर नॉट अ हाँ. गुड स्विमर और समथिंग, यू आर अ फकिंग बैड पेरेंट। Oh my god. कैसे कलेशी बच्चे पैदा किए हुए, तूफान आ रहा भग अच्छा अच्छा हुआ हम लोग पेरेंट नहीं है अभी तक. वही Societal pressure, oh my god. Thank you, Jesus. Okay, moving on. आप Okay. लोगों ने अपना नहीं बोला। यू गाइस हैव द सेम ओपिनियन एज मी इन द सेम अबाउट I हाँ. think so, डिलेमा। yeah, नहीं. because as a parent, what I have see, that's what I have experienced as a child as well. क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हम ही लोग थे, right? No matter हम्म, what is happening in the Hmm. world, no matter what is going on in Hmm. their own personal space or mindset or anything, they Hmm. have Hmm. always put us first, me and my Hmm. younger Yes. sister. So I think this Hmm. is the case.
for them as well. For Hmm. me. Very well, very well, very well. नेक्स्ट Let's क्वेश्चन. move on to the next dilemma. So, the next dilemma. An office theft. ऑफिस में बड़ा डिलेमा होता है लाइफ में. An office इसलिए मैंने theft. छोड़ दिया. You are in you are in charge of the petty cash at the office. However, a co-worker is responsible for making a weekly trip to the bank to make the business deposit and obtain petty cash for the following week. In a conversation with your mutual supervisor, you are asked if the increase in the petty cash amount was enough. You, however, have not seen any additional money. You realize your coworker has been pocketing the additional money. Do you tell your supervisor you have neither asked for nor received any additional petty cash and that you suspect your coworker is pocketing the money? Tell your coworker your suspicions and give them a chance to pay the money back, or say nothing and just wait to see what happens. This is a typical auntiयों हाँ. वाली हाँ, dilemma, लास्ट वाला ना, to be honest. देख के तमाशा हाँ. देखेंगे, तमाशा. ये देखो, आंटी वाली हरकत वाली चीज है, और ये पक्का कोई किटी पार्टी में भी होती होगी कि कोई पैसा खा हम्म. जाता है दूसरे टीम वाले. सो व्हाट्स योर ओपिनियन सोनिया? आई क्या आप थिंक अपने कोवर्कर से प्यार करते हैं? देखो मैंने तो ऑफिस छोड़ा, मेरे को तो हो गए 5-6 साल, सो आई विल गिव द फ्लोर टू गौतम फर्स्ट. मैं प्लीज तो गो कभी गया अहेड. ही नहीं. ओके. नहीं, पर मैं, नहीं, इन टर्म देख, कैश का वो होता तो मतलब मैं उसमें वो बट नहीं करता, मैं बता देता. ठीक है, हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑफिस के हिसाब से सोचिए इस चीज को. नॉर्मली मतलब हाँ. ऐसे कुछ फैमिली या कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि लाइक आपको पैसा दिखा और आपके जान पहचान वाले को आप बताओगे, या लाइक आपके उनके एल्डर को मतलब इट्स बताओगे. सिंपल एज कि तुम्हारे सामने किसी ने चोरी करी पैसे की, और तुम हम्म. उस चोरी में, इफ यू वांना बी इन्वॉल्व और नॉट, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. हम्म. देख, मैं उसको जाके बोलूंगा या तो आधा आधा बांट ले, नहीं तो पूरा जाएगा. मैं That's मैं मैं तो पहले देखूंगा कि कोवर्कर का लड़की है या हाँ. लड़का है. बस थोड़ा आगे सा. समझ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. But I believe most of us will be like say nothing and just wait to see what happens. हाँ, हम्म. लाइक तो अगर तुम्हारे सामने तुम ऑफिस में हो, कोई चोरी कर रहा है, क्योंकि आई थिंक इट यूज टू हैपन वेयर आई यूज टू वर्क इन द फर्स्ट प्लेस. आईजीटी में बहुत हुआ था, क्योंकि हमारा जो मैनेजर था ना, मैनेजर Hmm. देखो कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि आपका जो ये आउटसोर्सिंग बीपीओ होते हैं ना, जो एज एन Hmm. एजेंट हमारा जो आता है ना पे आउट फ्रॉम द कंपनी, Hmm. दैट कम्स अराउंड Hmm. लाख टू 1,50,000 इजीली. Hmm. ठीक है, इतना Hmm. आता है. और हमारा जो पे आउट होता है दैट बिकम्स लाइक हाफ, 50%, 50 to 70%, दैट्स इट. बाकी जो है वो सारा जाता है मैनेजर के पॉकेट में और कंपनी के पॉकेट में, क्योंकि कंपनी का सीधा सीधा रूल होता है कि हम इतना परसेंट रखेंगे और इतना हम देंगे. वो तो तुम्हारा लीगल है, वो तो पेपर्स में है जो है. बट जो आपके इंसेंटिव्स आते हैं ना, ठीक है, वो बहुत मोटा Hmm. पैसा आता है. वो सारा जाता है आपके मैनेजर के पॉकेट, क्योंकि वो दिखाते हैं बुक्स में कुछ और है, ठीक है, और जो देते हैं, जो मिलता है वो कुछ और है. यार वो तो देख, एक बंदे के साथ नहीं हो रहा ना, सबके साथ हो रहा है, और और उसमें चोरी तुम तो कुछ चोरी है कर ना. नहीं Hmm. सकते. वो सिचुएशन अलग है यार. ऑफिस थेफ्ट, हम्म. वी कांट डू एनीथिंग. I'll go, and if अगर मेरे सामने हुआ, मैं तो जाके बोल, मैं तो जॉब ही छोड़ दी थी यार, लाइक. तो think- नहीं, हमारे देख, मेरे सामने अगर पर्सनली ऐसे होता तो मैं उसको और अच्छा डील बताता कि और क्या क्या कर सकता है वो. मैं बताऊं, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत बार, और मेरे को पता भी है. नॉट ओनली पैसा या समथिंग लाइक, किस मतलब इंफॉर्मेशन शेयर वाला चीज भी देखा है मैंने दूसरे कंपनीज और मिल्स में पाते हुए. मैं क्या करता हूँ हमेशा पता है, मैं बस देखता हूँ चीज को और उसको बस
मतलब उसको बताता हूँ कि देख मैंने देख ली ये चीज, आई नो अबाउट दिस, और मैं हमेशा इस चीज का लेवरेज लेके रखता हूँ कि मैं फ्यूचर हम्म में इस चीज का फायदा उठाऊं उस बंदे से। हम्म See, that's leverage thing gonna help you in lot of relationships. हाँ, Lot of things like ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ ऐसा नहीं है कि मैं उसको बार बार पैसा मांग रहा हूँ या कुछ करूंगा, बस उसके बैक ऑफ द ब्लैकमेल नहीं माइंड में कर मैं रहा, ये, हाँ ब्लैकमेल नहीं कर बस, रहा, पर उसके हाँ, पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक पॉइंट ऐसे आए कि देख तुम बिना वजह मेरे से मजे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे हाँ पास कुछ है, yes, एडवांटेज ले कुछ रखा है, है बेसिकली। I got हाँ, something dirty on you. यस। Okay, that's a nice analogy. हम्म Okay, so moving on. Oh, let me repeat thing. Um, so you have worked years to be successful in your father's business. Okay. You felt you were obligated to take over as he worked his whole life to build the business left to him by his father. However, large businesses in town have seriously cut into profits, and for several years, you and your family have just managed to scrape by. Your father's health has declined and he has been hospitalized. He has a substantial life insurance policy that expires. Oh no! Fuck. So yeah, he has a substantial life insurance policy that expires at midnight. If he dies before midnight, you will inherit enough money to pursue a career you have always dreamed of, and provide adequately for your family. Fuck. Do you? This is evil, bro. Do you? First, pinch the oxygen line, making it possible for your dad to die, or smother him with a pillow. My God. Tell your dad the problem and let him suggest a solution and go by what he says. Or last thing, do nothing, as you cannot imagine living with yourself if you terminate your dad's life. I think it's pretty obvious. Gonna go with the third one. LIC नहीं है क्या इनके देश में? LIC का तो सीन है. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और देख, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपायर कैसे होगी यार? प्रीमियम ही तो भरना होता है उसका, मिडनाइट से पहले प्रीमियम भर दे, हद हो गई LIC के है। हाँ, पास प्रीमियम के हाई, भी तो पैसे नहीं है हाँ, ना. वही तो लिखा है लाइक हाँ कि यू आर नॉट, you have just managed to scrape by. तेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तेरी बुरी हालत है कि मरने को हो गया, क्योंकि रियल लाइफ होती है भाई, ठीक है ना, हम जितना भी तुम हाँ, तो मेंटली और नहीं इमोशनली बोल दो कि स्ट्रांग है. भाई, कुछ भी करके पैसा जमा करा के तू वो कर ले, क्योंकि दोनों में उसी का ही फायदा। अंकल की विकेट उड़ती है तो भी पैसा मिल जाएगा पैसा और अगर बच भी जाते हैं तो अंकल तो बच ही गए ना यार। और जो पॉलिसी है वो बिजनेस बिजनेस में कुछ ना कुछ करके सेटल अप हो जाएंगे, बंदे की जान बचानी जरूरी है। ओके, बट टेल मी वन थिंग, लाइक आउट ऑफ थ्री तेरे पास अगर ये तीन ऑप्शन है, तीन में से किस पे जाएगा तू? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. देख, अगर सेकंड वाला करते हैं ना कि टेल योर डैड द प्रॉब्लम एंड लेट हिम सजेस्ट द सॉल्यूशन, एंड वो बहुत गाली पड़ेगी। इस दिल के लिए पैदा किया था तुमको। भाई साहब, क्या ही नहीं कितने है, तीनों यूजलेस है वो। ईविल सा ये दे नहीं रखा क्वेश्चन. पिंच द ऑक्सीजन लाइन, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर योर डैड टू डाई, और हम्म स्मॉदर हिम विद अ पिलो. हम्म Sorry, no. Shut the fuck that पैसा, bro. What are you gonna do, Shilpi? लास्ट वन, आई थिंक वही है कि पैसा तो आ ही जाएगा, सब यही बोलेंगे और हाँ, अंकल की किडनी बेच दो यार, एक आ जाएगा। क्या। Okay. हाँ मतलब कुछ और जुगाड़ तो हो ही जाएगा। एक आंख निकाल दो यार, डोनेट कर। एक टेस्टिकल निकाल दो यार, टेस्टिकल तो भाई बहुत महंगा बिकता है. नहीं, वो बहुत दूर बिकता है, पर तो ठीक है लेके यार. हाथ में क्या, लेके जाएगा उधर। कैप्सिकम? कैप्सिकम नहीं भाई, कैप्सिकम. No, bro. गोटी गोटी। Grape.
आमला। टेस्टिकल बोला। आमला। मैंने मैंने सुना कैप्सिकम। गोटी कैप्सिकम कहाँ से गोटी। निकल? भाई तुम अंकल का कैप्सिकम निकाल रहे हो? दोपहर का दोपहर का खाना। और बेचने भी जा रहे हाथ में लेके। अरे ला आह, ये तो, आइला ये तो टट्टी है। हम्म सर। बेकार था वो। गेट रिच पड़ता है। आफ्टर दैट वेरी ट्रॉमेटाइजिंग डिलेमा, इससे पहले we move on to another amazing dilemma of getting rich. बाप मर गया So, पैसा आ गया। गेट रिच। I think subtly बोला गया है है ना, कितनी कि सटल। भाई सटल। तूने तो कर लिया, तूने गुनाह कर लिया बेटा। अब तेरे को और एक डिलेमा देता हूँ लाइफ में। आई वांट टू चेंज माय आंसर। अब देर हो चुकी है। अंकल भी अंकल एक्सपायर, अंकल आ गए जोन्स भी वापस। एक्सपायर। अंकल कैप्सिकम फेंक के मारेंगे। वो होता है ना, ऊपर से बोल रहे मुझे 2 सेकंड दे दो, बस 2 सेकंड दे दो। अंकल नीचे आएंगे, उठेंगे, कहेंगे भूसड़ी और वापिस चले जाएंगे। वो सड़ी, वो सिर के शिमला मिर्च। बेल पेपर, बॉल पेपर। बॉल। वॉलपेपर। टट्टा। नाइस। टट्टा। डैडी टट्टा। बाय बाय। टट्टा बाय बाय। स्मूथ नहीं शिल्पी भाई, पापा ऐसे स्मूथ। टट्टा नहीं, पापा ऐसे। गुड गुड बाय टट्टा। टट्टा दी। गुड बाय पापा की जगह गुड बाय। भाई टट्टा। गुड बाय टट्टा। यार चलो ना, चलो, बेच चलो दिए चलो बेच दिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यार we gonna चलो। go surely to hell, not to heaven. So after getting rich, let's go to this new dilemma. अब तो हम लोग करोड़पति बन गए। हाँ। So your friend offers you an opportunity to make a great deal of money very quickly. He has arranged to set up an offshore account for your process. He will not tell you exactly how he is making this money, but you get the impression it is not exactly legal. He only wants an investment of $500 and promises you will have enough for your minimal investment that will never need to work again. Do you give him $500 deciding if you don't know how he is making it? You are in the clear. Give him the $500 deciding if you don't know how he is making it, you are in the clear. Demand to know the details before getting involved. Decide you want no part of this deal as you trust your instinct that the offer is shady and you might even get in legal trouble. पहले तो दोस्त पे डिपेंड करता है यार, मेरे को तो लगता है ये कैसा दोस्त बोल रहा है। सेकंड करेंसी पे यार। डॉलर में है तो मतलब यहाँ तो नहीं है। 500 रुपए देके अगर हाँ। 2 दिन में पैसा डबल हो रहा है चिट वाला, तो करा लक्ष्मी भी चिट सकते हो। फंड। हाँ, लक्ष्मी चिट चिट फंड। फंड। आई थिंक ये बहुत वो है लाइक, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे दोस्तों का फोन आया भी होगा सबको कि भाई हम्म ऐसा है, एक स्कीम है। आज वो दोस्त नहीं है। आज वो जेल में तो है। मैंने तो कभी नहीं घुसा हूँ इस पे। नहीं तो यार वो आई वाज उसने। नेवर। हम्म मैं भी हम अगर ऐसा सोच रहे हैं, पर अगर इंडियन रुपीज में अगर कोई 500 का वो करता कि चल ठीक है तू ले ले, 500 ले ले, क्या ही जा हाँ। रहा। अगर बाहर भी हम लोग बाहर रह रहे होते तो शायद हमारे लिए $500 बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ भी नहीं होता। डिपेंड करता है। अगर हम्म। कुछ भी नहीं होता तो दे ही देते, चल ले ले $500, डबल करके देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, रख ले, काइंड ऑफ। पर हाँ, अगर लीगली प्रॉब्लम होगा, 500 $500 में क्या ही लीगली प्रॉब्लम होगी यार। पुलिस वाले खा लेते हैं यार। $1000 का तो फाइन होता थूकने का। क्या वही ही है तो। यार ये। $1000 का तो आईफोन आ जाता। लाइक, गलत है वो। हाँ, पैसे पे भी डिपेंड करता है लाइक, जब पैसे का अमाउंट अगर कम हो, आपको लगता वो है कह रहा है कि वो कि ये पाँच सौ कोई। डॉलर लेके
इतना इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न आएगा कि उसको दोबारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है। हम्म तो वो पहले तो तो मुझे लगता है कि ये भांग पी के आया है। हाँ मैं लाइक पहले उसको बोलूंगा, भाई क्या फूक के आया है, मुझे भी मुझे फूकना। भी फुका वो एग्जैक्टली। $500 की सुपारी देगा, वो ऊपर वाले अंकल का टाटा कर देगा। और साले अश्नीर ग्रोवर के लाल टट्टे। ये शिल्पी you got stuck on balls yo बॉल पेपर यार बेकार है ये तो। बॉल पेपर तो बॉल पेपर यार $500 में लाइफ टाइम से कुछ ज्यादा ही ऊपर की बात बोल रहा है, मतलब हाँ। थोड़ा विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस पहले ही लाइक मजाक हो मेरे जाएगा। ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है। लाइक आई हैव बीन गिवन प्रॉमिसेस कि तू काम कर ले साथ में, और पैसा अंधा पैसा है। बट ये मत पूछना कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ऑब्वियसली फ्रॉड का पैसा है। बट वही है ना, व्हाट्स द पॉइंट। भले ही तेरे को बूम बूम करने खड़ा कर दे वो। पर आपको कर लेना चाहिए था, किया क्यों नहीं? हाँ। बताऊं क्या हुआ था मेरे साथ? ट्राई तो करते हैं। क्या अबे हुआ है ट्राई बताऊं? तो करते हैं। टेक सपोर्ट का क्या ही नाम होता सुना है ज्यादा से तूने? ज्यादा। टेक सपोर्ट का नाम सुना है? किसका? क्या टेक होता? टेक सपोर्ट। टेक सपोर्ट। It's very common on in Noida and Gurgaon and in Delhi। टेक सपोर्ट के नाम पे कॉल सेंटर चलते हैं जो हाँ यूएस, हाँ यूएस में और यूके में और यूएस को लूटते हैं। ओवरसीज में बैठे और हाँ जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं उनका पैसा लूटते हाँ हैं उनको लूटते हैं। पागल बना के कि आपका कंप्यूटर फक्ड अप है और आपका कोई चीट। तो ये सबसे मेरे ज्यादा को, उधर है ना, पीतमपुरा, जनकपुरी, हाँ ये सब हाँ जगह पे। हाँ, नोएडा में हम्म, बहुत कुत्ता चलता है ये टेक सपोर्ट, ठीक है? हाँ। नोएडा और स्पेशली दिल्ली गुड़गांव में। तो मेरे को बोला था, पता है और रिटर्न कितना था? मेरे को कितना? मेरे को एक पार्टी में मिली थी वो लेडी, वो अपना टेक सपोर्ट चलाती है। वो बंदी हम्म अपनी मर्सिडीज में आती थी, ठीक है? उसके बाद खुद की मर्सिडीज थी, हम्म ठीक है? 3 घर थे अलग अलग, हम्म और बहुत पैसा। मेरे को बोलती है कि तू आ काम कर, तेरी बेसिक सैलरी मैं दूंगी 75, ठीक है? हम्म और इंसेंटिव जितना तू कमा सके उतना। और फिर मेरे को बताया कि उसकी जो टॉप परफॉर्मर है ना, वो हर हम्म। महीने कितना उठाती है, हर महीने। गिव मी अ दो नंबर। करोड़ नहीं, इतना तो ज़्यादा, ये रियलिस्टिक। कितना बोला? कितना बोला? दो 2 करोड़। 2 करोड़। महीने में 2 करोड़ कमा रही होती है तो भाई साहब वो अपना टेक सपोर्ट चला रही होती। भाई मैं तो 1 करोड़ में भी चला लूं अपना, पागल है वो। भाई वो मेरे को बोलती, कहती वो बंदी लेके जाती है, उसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, टूटी फूटी इंग्लिश बोलती, 11 लाख से 12 लाख के बीच में उठा के लेके जाती है हर महीने। आपको कर लेना चाहिए था, आपको तो इंग्लिश बोलना भी आता है। आई नो, हाँ। बट मैं आर्टिस्ट हूँ यार, और मेरी मोरालिटी ना बहुत सॉलिड है। तो घंटा नहीं फर्क पड़ता अबे मैं एक कैसे दो महीने सकता। करते, एक दो नहीं करोड़ फर्क कमाते। पड़ता रे। फिर फिर आ, फिर आपको भी हम शिल्पी। लोग, मैं तेरे को नंबर देता, तू हमको कर। देखते हम्म, स्कैमर कॉल्स में फंसते। शून्य। स्कैमर स्कैमर कॉल्स, स्कैमर घंटा स्कैमर स्कैमर में कॉल्स कुछ नहीं फंसो। पकड़ा जाता, वो जितने जिस हिसाब से होता है ना फिर हम स्कैम्स में तेरे को बनती है। पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं। हाँ तो फिर मैं तुझे क्या लगता है, तो मैं फिर मैं बैठा होता पॉडकास्ट में ये दो दो लैपटॉप लेके कि अरे यार स्ट्रीम नहीं हो रहा है यार, साला 100 Mbps में कैसे करूंगा काम में। वो उधर यूएस में किसी आंटी से, मैडम आपका कंप्यूटर में लौड़ा घुस गया है। आप $500 दीजिए, लाइफ टाइम काम नहीं करना पड़ेगा आपको। वही वही दोस्त है ये वही दोस्त वही बस बनते हैं, आपको लाइफ टाइम कुछ नहीं करना नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये, चलो चलो चलो, नेक्स्ट लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट। टेलिंग Let's अ move on to सीक्रेट। telling a secret. Yeah, तो योर फ्रेंड्स, tell me a secret. ओके सो गंगाधरी शक्तिमान है। सच बोलो, आप अभी भी स्कैमर वाला चुपके से करते हो ना ये मैं चीज, तेरे से और बात ही नहीं हमें नहीं करता, बता पता रहे? स्कैमर वाला कर रहा होता तो ठीक है ना। अ, आप रोज नोएडा जाते हो ना, झूठ मत बोलो। नहीं, मैं वीकेंड से जाता हूँ बस।
KR इलेक्ट्रॉनिक्स, KR एंटरप्राइजेस के अंदर नीचे गोडाउन में बैठते हो यार ना। हाँ झूठ मत भाई, बोलो, झूठ मत बोलो। घंटा है ना। तुझे क्या लगता मैं ये सब कर रहा चलो होता चलो, ना? टेलिंग अ सीक्रेट। तो अच्छा, भाई इसका सीक्रेट तो तू कैसे जाइए। डिस्को में आ गया? शून्य का सीक्रेट अच्छा इज चल, आउट। वो सब ठीक है, तुम्हारे गोडाउन में नेटवर्क कैसे आ जाते हैं यार? मेरे तो फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं आते, ये बता दे। हाँ यार, ये तो बताओ। मुझे काम। एक्सटेंडर लगा रखा है, हाँ। ये एक्सटेंडर। हाँ, ये टेक सपोर्ट में कैसा नेटवर्क का सीन कैसे हो? एक्सटेंडर लग जाता है। अरे यार बताओ यार, कुछ तो बता तो रहा हूँ, सीक्रेट्स एक्सटेंडर लग बताओ। जाता है ना। एक्सटेंडर और खाने को क्या मिलता है? खाने को मिलता है रोटी, जो तू बोले। दाल। जो तू बोले, अबे दाल जेल रोटी। तोड़ना है। इनिशिएटिव पर वो डिपेंड करता है यार, कितना किया। ओ, 1 करोड़ मैंने जिसको मिल रहा है भाई, वो दाल रोटी थोड़ी ना खाएगी, वो क्यों खाएगा तो मैकडोनल्ड से दाल अपना रोटी, खाएगा। राइट? मोती महल से खाना मंगवाएगी वो यार, वो भी पेरिस से शेफ पहली के साथ। भाई बात, पेरिस वो से खा ट्रफल्स आएंगे उड़ते हुए। भाई मेरे को भाई वो पहली खाना फ्लाइट ही में नहीं ट्रफल्स खाएगी। चाहिए। वो खाना ही नहीं खाएगी, वो सोना चबाती है। ठीक है। भाई, तेरे खाने से तेरे गाड़ी से महंगा उसकी टट्टी है। चलो यार, एक और करते हैं, फिर खत्म वो करते हैं। बोलेगी भोसड़ी के तुम साले गरीब गरीब। खाना खाते हो, ये तुम्हारे से महंगा में टट्टी है सालो। सात अभी लाख साला मैंने 10 तोला, 10 तोला हक के निकालोगी, खानदान लूट जाएगा। ये 7 लाख की गाड़ी में आया तू, मैं इतना तो हक देती सुबह। हाँ, मतलब तुम हक साले बेसिक सैलरी। दे। डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस। चलो चलो, लास्ट करते हैं। Let's move on to telling a secret. So your friend tells you that they committed a crime. Okay. They explain that they are having trouble sleeping at night and feel you are the only one they can trust with their confession. A few days later, you read in the newspaper that someone has been arrested for your friend's crime. Do you go to the police and tell them what you know? Encourage your friend to confess and warn him. If he does not do so, you will tell or say nothing because we will not betray our friend's confidence. I know. तो बताओ शून्य, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए कि नहीं? नोएडा के बारे में बताने। चला जाए। हमारा इसीलिए के आर इसीलिए के आर एंटरप्राइजेस। हम्म। बताओ बताओ क्या करोगे तुम? मैं तो ऑप्शन 3 करूंगा यार, मैं पहले भी नहीं कुछ करा था मैंने, मैं अभी भी कुछ नहीं करूंगा। और क्लासिक। आई थिंक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी यही हाँ, है कि पुलिस को ना पास रखना है, ना दूर रखना ना है। दोस्ती रखना, अच्छी ना पुलिस से दुश्मनी। दोस्ती भी कुछ नहीं खराब, करना। दुश्मनी भी खराब। एग्जैक्टली। ये तो यार क्या है, ये डिपेंड कोई करता डिलेमा कि थोड़ी ना, ये तो हमारा डेली लाइफ है। डिपेंड करता कि जो अरेस्ट हुआ ना, वो है कौन। अगर तुम्हारे पिताजी अरेस्ट हो गए तो तुम तो जाओगे। कि मान ना उन्होंने करे ऐसा क्राइम कभी नहीं हो। किया। जी हाँ तो अरेस्ट, मतलब पिताजी के अरेस्ट होने के दिन आ जाए भाई। नो 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 नो। डिपेंड करता है कि उस क्राइम में जो बेगुनाह फंसा हम्म। है कौन है वो। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा दोस्त अगर बहुत अच्छा है तो तुम कुछ नहीं करोगे। यार ये तो क्राइम पे भी डिपेंड करता है यार, मतलब हाँ ऐसे वही ना, तो क्राइम पे तो डिपेंड, तू खून करके अपने आया दोस्त। तो मैं तो भाई। हाँ, बटुआ बटुआ हाँ, मार लिया तो ठीक है, अब खून खराबा कर दिया है तो गलती है ना फिर तो। और क्या। मैं इस पाप का क्या भागीदार टट्टी। नहीं हूँ। बिरजू, बिरजू की तो माँ ने उसको गोली मारी थी। शून्य के भी पाप के भाग्य नहीं है हम लोग। हम कॉल सेंटर गरीबों को लूट रहे हो, यूएस के हम्म, गरीबों को। पैसा लगता है उसका। तुम्हारा पाप का घड़ा तो वैसे ही भरा हुआ टट्टों से। पापी हो तुम। है। बॉल पेपर। आई पापी बॉल पेपर। इस पूरे पॉडकास्ट का आज का सबक ये रहा कि जो भी हो, पहले तो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराइए सबसे पहले। लाइफ इंश्योरेंस कराया तो अपने बच्चों को ना बताइए। हाँ। हाँ, बच्चे को ना बताइए। और फिर बच्चों को देखिए, नहीं तो लौड़े जैसे पानी में भाग जाते हैं। हाँ, पकड़ के रखना सिखाए। नहीं बच्चों तो को कम से पकड़ कम के रखना। स्विमिंग तो सिखाइए। स्विमिंग सिखाइए। हाँ। हाँ,
नहीं तो स्विमिंग तो सिखाओ भाऊ और से, सबसे कि पहली बात, एटलीस्ट भागे नहीं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, बच्चे नहीं करने। क्या? सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था ना अपने पास, कौन सा था? नहीं वो तो फ्रेंड वो वाला, था। नहीं 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 नहीं। फ्रेंड वाला, हाँ फ्रेंड वाला ही तो था भाई। अनफेथफुल फ्रेंड। हाँ, अनफेथफुल फ्रेंड वाला था ना। आंटी आंटी मैंने आपको वहां देखा था, बच्चे ही ना हाँ, करो। बच्चे ना करो भाई, सेकंड वाला था एक्चुअली, बट हम्म। और शून्य का आज एक सीक्रेट बाहर आया कि शून्य स्कैमर है बहुत बड़े, और टेक अल्लाह सपोर्ट के नाम पे ये बोल लाखों रहे। करोड़ों को रुपए, लाखों बोल रहे, जो बोल रहा है करोड़ों तेरे रुपए को लाख कमा पता रहा है, लाख ऑडियो तो मैंने करोड़ों एडिट कमाना करना है ना। चाहते हैं पर बेसिक सैलरी से ऊपर नहीं उठा पाते। ये सीक्रेट है। वॉलपेपर खा के आ है। जाते हैं। ये एक भी टट्टा एक हगना, रोल, एक रोल। ये भी ये भी सोना हगना चाहते हैं, बट नॉर्मल हगते हैं फिर। सपने तुम्हारे सोने हकने के, और खाने को तुम्हें चावल नहीं मिल रहे। जो भी है, आशा करते हैं शून्य आप लाखों करोड़ों कमाएं, ऐसे ही लोगों को स्कैम करते रहिएगा, और यूएस को वो करते रहेगा, यूएस को लूटते रहेगा, और गरीब आंटी अंकल अंकल जितने भी बूढ़े हो सबको लूटिए, आराम से लूटिए, और हम्म। अपने बच्चे बच्चे सबको बचा के रखिए पानी